Good morning. Welcome back to the continuing lecture of chemical control and coordination. So, I guess we finished up with something called as parathyroid gland. Thyroid बात किया था, फिर parathyroid बात किया था, and sequence के हिसाब से we'll have to do pancreas first. Sequence के हिसाब से we'll have to do pancreas, and post pancreas we'll be doing adrenal gland. But since adrenal gland is a little more important and vast topic, and pancreas के बारे में आपने बहुत सारी चीजें आपको already पता है, right? So pancreas is we'll be doing it post we complete adrenal gland. ठीक है? Now something special about adrenal gland, this is one particular gland which we already know that it degenerates with age, right? Degenerates with age, referring to अगर एक individual की by birth the adrenal gland is nearly half the size of the kidney. As the person grows in age, and if you check the presence of adrenal gland in a old individual, in that particular case it will be just the size of a pea. So बोलने का मतलब क्या है? One of the most important gland again with respect to after thyroid, it is the next most important gland, and any particular damage to this particular gland will be associated with metabolic dysfunction. ठीक है? क्योंकि आपका ग्लूकोज का भी मेटाबॉलिज्म, आपके मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग इज आल्सो एसोसिएटेड विद एड्रिनल ग्लैंड. ठीक? नाउ why do we call it as adrenal gland? Ad referring to ऊपर, adrenal, right? Renal मतलब किडनी के ऊपर. Adrenal gland can also be referred to as, it can also be called as suprarenal gland. Suprarenal gland. Again meaning same ही है बेटा. ठीक है? तो let's start up with origin. अब एड्रिनल ग्लैंड में दो हिस्से हैं बेटा, adrenal cortex and adrenal medulla, correct? And we know that adrenal cortex is majorly associated with secretion, whereas adrenal medulla is in association with the sympathetic and parasympathetic nervous system. मतलब adrenal medulla is associated to produce adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline are hormones as well as they are neurotransmitters, right? So they are associated directly, they are connected with your brain. So origin के हिसाब से adrenal gland is ectomesodermal in origin. Ectomesodermal in origin. अब ectodermal origin का क्या है? Adrenal medulla. Adrenal medulla is ectodermal in origin. Why? Because it is directly in contact with your, मतलब technically it is associated with your brain. अब बोलने का मतलब ये है बेटा, जब एड्रिनल मेड्यूला बन रहा था, a little bit of मतलब a small portion of the neural tissue, was in contact with the adrenal gland, correct? But when you talk about these neural tissue which later formed the adrenal medulla, they lost the contact with the nervous system, right? और ये जो neural tissues बच गए, ये जो specifically जो cytons है, right? These cytons, they completely turned into glandular in function. They completely lost the connection with your nervous system, central nervous system, and these cells, now referred to as ganglional cells, they became completely glandular in function. ठीक है? अब ग्लैंडुलर फंक्शन के भी हमारे पास न्यूरॉन्स है जो हम हाइपोथैलेमस में पढ़ चुके हैं, राइट? सो हाइपोथैलेमिक गैंग्लिया, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई प्रोड्यूसर्स vasopressin, oxytocin and all the other release factor and inhibiting factor.
सिमिलरली ये भी ब्रेन से ही निकला हुआ एक साइटॉन का सेल है जो which completely formed the core of the adrenal medulla and completely they lost the nervous system, they lost the nerve impulse conduction का function and now they are only glandular in nature. ठीक है, so ectodermal in origin का क्या है बेटा, adrenal medulla. और mesodermal origin का क्या है, mesodermal origin का है adrenal cortex. Adrenal cortex. ठीक है, so we'll have to do adrenal cortex and adrenal medulla separately. First we'll be only talking about adrenal cortex. ठीक है, origin लिख लिया. origin के बाद हम क्या लिखते हैं, structure and location. तो location तो हमको पता है कि it is resting on the kidney. structure बना लेते हैं. ठीक है, तो it is a pyramidal shaped structure. एक pyramidal shape का gland है. ठीक है, और the central region, the core is referred to as adrenal medulla. The core is referred to as adrenal medulla. ठीक है, cortex में there are 3 more layers. cortex का 3 differentiated layer and each layer is producing a type of hormone. ठीक है, adrenal cortex को एक fibrous tissue का covering है, fibrous connective tissue which is associated with attachment of this adrenal gland with the body wall. Adrenal medulla with the body wall. ठीक है, and then you have your first layer. Then you have your first layer. The first layer is referred to as zona glomerulosa. क्योंकि यहाँ पे जो appearance है, that appearance is just like network of ball-like structure. है ना, glomerulosa is a ball-like structure. If you remember, tough capillaries. है ना, so the first layer which appears to be just like a ball-like appearance, puffy ball-like appearance, उसको बोलते हैं zona glomerulosa. ठीक है, the second layer is in the form of bundle. The second layer is in the form of bundle-like appearance. ऐसे थिक bundle-like appearance होंगे बेटा. ठीक है, and the third layer which you can see here, the third layer is referred to as zona reticularis. जोना रेटिकुलरिस. और रेटिकुलर का मतलब मेरे को पता है, रेटिकुलर का मतलब क्या है, थिन नेटवर्क. जैसे नेटवर्क लाइक अपीयरेंस होगा बेटा. वेरी क्लियर. सो द आउटरमोस्ट लेयर which you can see here is a fibrous connective tissue layer. fibrous connective tissue. उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा. द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज जोना fasciculata and the third layer is called as zona reticularis.
ठीक है, एंड द इनर कोर इज रेफर्ड टू एज एड्रीनल मेड्यूला. So it's very important to remember this in the order. ठीक है, so order क्या बोलता है, GFR है ना, हमने पढ़ा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वैसे ही ऑर्डर है GFR. आउटर मोस्ट लेयर इज ज़ोना ग्लोमेरुलोसा. क्यों हम इसको बोलते हैं ज़ोना ग्लोमेरुलोसा? बिकॉज इट इज अ मतलब इट इज बंडल बॉल लाइक अपीयरेंस में दिखेगा आपको पूरा. इफ यू टेक अप अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इट, ठीक है, ज़ोना फैसिकुलेटा कैसा दिखेगा आपको? बंडल लाइक अपीयरेंस में दिखेगा. फैसिकल का मतलब आप समझते हो, फैसिकल का मतलब क्या है? बंडल. ठीक है, और ज़ोना रेटिक्युलरिस, रेटिक्युलर इन नेचर, रेटिक्युलर अपीयरेंस में दिखता है, ब्रांच्ड अपीयरेंसेस में दिखता है. सो ज़ोना रेटिक्युलरिस. ठीक है बेटा, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर हिस्टोलॉजी. अब आपको ये याद रखना है कि ज़ोना ग्लोमेरुलोसा जो है, दैट इज द फर्स्ट लेयर is associated to produce the hormone called as mineralocorticoid. So G produce करता है M, ग्लोमेरुलोसा बनाता है mineralocorticoid, fasciculata बनाता है glucocorticoids, fasciculata बनाता है glucocorticoids. ठीक है, and reticularis makes your androgen. तो आप याद कैसे इसको याद करोगे पूरे सिंक में, पूरे ऑर्डर में कैसे याद करोगे? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा मेक्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एग्जांपल क्या आते हैं? एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन इज वन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, राइट? एल्डोस्टेरॉन. सो डीहाइड्रोक्सी एल्डोस्टेरॉन, ये सब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है बेटा, जो मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म, मिनरल्स का अपटेक एंड एक्सक्रीशन को हेल्प करते हैं. Fasciculata is associated with production of glucocorticoids. Glucocorticoids collectively or in general layman's term it is called as, it is referred to as cortisol, है ना? cortisol के steroids के drugs हम लेते हैं. So cortisols, ज़ोना fasciculata और ज़ोना reticularis बनाता है androgen. तो हम इसको याद कैसे करेंगे? We will remember this as good morning girlfriend. Andrea refers to androgen. ठीक है, सो गुड मॉर्निंग याद इसलिए करना है बेटा बिकॉज हमको ये याद रखना है कि कौन से लेयर से कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है. GM, सो G दैट इज ग्लोमेरुलोसा. GFR याद करना है आपको. ठीक है, सो गुड मॉर्निंग, M रेफर्स टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, F से बनता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एंड्रिया तो सब आप एसोसिएट कर लोगे. सो दिस इज टू रिमेंबर गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड एंड्रिया. ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया, ओरिजिन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया. इस स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन के बाद दो वर्ड भी राइट, आई गेस वी डायरेक्टली जंप इनटू हार्मोन्स, करेक्ट? स्ट्रक्चर फंक्शन के बाद हम हार्मोन्स के पास ही जाते हैं, है ना? सो एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में अभी वही लिखना है आपको, यही डायग्राम में मैं सब लिखा देता हूं. एड्रीनल कॉर्टेक्स का ज़ोना ग्लोमेरुलोसा दैट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द टोटल ग्लैंड. ठीक है, ज़ोना फैसिकुलेटा इट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 50% of the total, 50% of your total gland. इसमें देखो दिख रहा है आपको. और रेटिक्युलरिस makes up 7%. ठीक है, मतलब सबसे थिकेस्ट लेयर, सबसे ज्यादा अमाउंट का क्या चाहिए आपको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. बिकॉज देखो वही कंडीशन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेजर फंक्शन क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट को इंक्रीज करना, सो दैट योर बॉडी रिसीव्स, योर टिश्यूज और योर सेल्स दे रिसीव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, so on an average this is what we have to understand with respect to adrenal cortex के तीन लेयर. we have to do adrenal medulla, we are not touching adrenal medulla now. first we will complete the hormones of adrenal cortex. ठीक है बेटा, तो ये अपना स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी हो गया. आपको इतना ही याद रखना है. ग्लोमेरुलोसा नाम क्यों है? बिकॉज वो बॉल लाइक अपीयरेंस है, और फैसिकुलेटा इज बंडल लाइक अपीयरेंस, और रेटिक्युलरिस नेटवर्क लाइक अपीयरेंस. समझ में आ गया बेटा? ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक अप दी हॉर्मोन्स स्पेसिफिकली. सो पहला लेयर, so to understand the hormones, so first we'll talk about the hormones of the first layer,
The first hormone which we talk about is mineralocorticoids. Mineralo refers to minerals, है ना. Mineralo refers to minerals. Minerals here are predominantly of sodium and potassium. ठीक है. Corticoids because they are produced by cortex, so cortical hormones, इसलिए इसको बोलते हैं corticoids. देखो नाम भी बहुत ही इजी है. मिनरल्स को मेटाबोलाइज करने वाले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स आर मतलब टेक्निकली दे विल स्टिमुलेट योर गोनाड्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है. सो हार्मोन्स में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. हार्मोन्स के बाद हम क्या लिखते हैं, पहला हम क्या लिखते हैं, नेचर, केमिकल नेचर. सो इसका केमिकल नेचर क्या होगा बेटा. So we'll try to write down chemical nature. तो इसका केमिकल नेचर क्या होगा बेटा. केमिकल नेचर इज corticoids. I told you all the hormones of the adrenal cortex are steroids in nature. So chemical nature is steroid derivative. स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स. उसके बाद केमिकल नेचर के बाद क्या लिखते हैं हम, रेगुलेटेड बाय. सो अब एल्डोस्टेरॉन का रोल हमने डाइजेशन एक्सक्रीशन में देखा था. करेक्ट. सो एल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करवाने के लिए, एल्डोस्टेरॉन को पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, बिकॉज मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एन एल्डोस्टेरॉन को पॉजिटिव फीडबैक कैसे मिलता है, रास सिस्टम से. तो रास सिस्टम में सबसे पहला हार्मोन क्या आता है, एंजियोटेंसिन. दूसरा हार्मोन क्या आता है, रेनिन. उसके बाद क्या आता है, एल्डोस्टेरॉन. सो प्रीडोमिनेंटली वी विल नॉट राइट रेनिन हियर, लिखेंगे तो भी कोई ये नहीं है बेटा. सो बट रेगुलेटेड बाय में फॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वी हैव सेवरल डिफरेंट फैक्टर्स. सो पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, एसीटीएच. ठीक है. एसीटीएच के बाद क्या होगा, एंजियोटेंसिन. ठीक है. एंजियोटेंसिन. और दूसरा जो स्टिमुलस होगा ये स्पेसिफिकली ये है एंजियोटेंसिन. अगर एंजियोटेंसिन है बेटा, तो एंजियोटेंसिन अगर है तो प्रीडोमिनेंटली रेनिन भी होगा. मतलब एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करने वाला ही हार्मोन रेनिन है. सो रेनिन इज नॉट प्रीडोमिनेंटली गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक. रेनिन तो काम एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का कर रहा है. ठीक है. सो पहला पॉजिटिव फीडबैक, पहला दिस इज वन फैक्टर, दिस इज द अदर फैक्टर एंजियोटेंसिन. एंड द नेक्स्ट फैक्टर, अब देखो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करना. सॉल्ट हियर प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद योर अब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, प्रीडोमिनेंटली अब्सॉर्प्शन ऑफ योर सोडियम. तो अगर मैं सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा हूं, सोडियम की अब्सॉर्प्शन करवा रहा हूं और एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है, तो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाने वाला कंडीशन क्या होगा, लो सोडियम. सो हियर द कंडीशन इज लो सोडियम. ठीक है. लो ब्लड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ सोडियम. ठीक है. सो रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक से समझ गया आपको. नेगेटिव फीडबैक कौन देगा बेटा, नेगेटिव फीडबैक इज गिवन बाय ANF एंड इंक्रीज्ड सोडियम. काम इसका सेटिस्फाई हो गया, मतलब टेक्निकली सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इसको बढ़ाना था, काम हो गया. तो अभी काम हो गया तो उसका सिक्रीशन शुड स्टॉप प्रीडोमिनेंटली. सो रेगुलेटेड बाय आपको समझ गया, केमिकल नेचर आपको समझ गया, रेगुलेटेड बाय आपको समझ गया. इसके बाद ठीक है, केमिकल नेचर रेगुलेटेड बाय. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द टारगेट. क्या होगा बेटा इसका टारगेट, we also know this. So target is DCT and CT of nephrons. ठीक है. टारगेट हो गया. टारगेट के बाद what do we write, hormones chemical nature regulated by target. टारगेट के बाद हम लिखते हैं फंक्शन, राइट. सो फंक्शन क्या होगा बेटा, पहला चीज व्हाट आर, ये देखो दिस इज जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन रास सिस्टम. सो फंक्शन क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज्ड
reabsorption of सोडियम. अगर इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो रहा है तो इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. अगर सोडियम को ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके साथ पानी भी ऑब्जॉर्ब हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो इट इज लीडिंग टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Increase reabsorption of water, thereby increasing blood volume, and further because of increased sodium, because of increased blood volume, there is increased blood pressure. So ultimately इसका गोल, इसका फंक्शन ये सब है. ठीक है बेटा. So any particular doubts with respect to aldosterone? ये हो जाना चाहिए, है ना. और सब कुछ सारे फंक्शंस, पांचों फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर और मेमोराइज. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं फंक्शन के बाद? हम क्या लिखते हैं? पैथोलॉजीज. फंक्शंस के बाद हम लिखते हैं पैथोलॉजीज. पैथोलॉजीज भी हाइपर होगा, हाइपो होगा बेटा. ठीक है. पैथोलॉजीज में इट माइट बी हाइपर सेक्रीशन और इट माइट बी हाइपो सेक्रीशन. ठीक है. अब अगर हाइपर सेक्रीशन हो रहा है बेटा, हाइपर सेक्रीशन, तो एक कंडीशन है, हाइपर सेक्रीशन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोनिज्म. देखो एल्डोस्टेरॉन का इंक्रीज लेवल है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डोस्टेरोनिज्म. एल्डोस्टेरोनिज्म और इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्स डिजीज. ठीक है. एल्डोस्टेरोनिज्म और ऑल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्स डिजीज. वेरएज हाइपोसेक्रीशन में एक ही डिजीज है जिसको हम बोलते हैं, एक ही डिजीज मतलब टेक्निकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का एक ही डिजीज है, दैट इज कॉल्ड एज एडिसन्स डिजीज. ठीक है. अब क्या होगा एल्डोस्टेरोनिज्म में? क्या क्या हो सकता है? कंडीशन क्या होगा? अगर हाइपर सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, सो क्या होगा? बहुत ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा. अगर बहुत ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा तो व्हाट विल बी द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस? कैन आई से इसके सिम्टम्स में इंक्रीज्ड प्लाज्मा सोडियम होगा, है ना. बोलने का मतलब ये है बेटा कि एल्डोस्टेरोन ज्यादा है तो बहुत ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा. बहुत ज्यादा सोडियम के साथ बहुत ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन होगा. ठीक है. बहुत ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन होगा तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग अप, मतलब टेक्निकली इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा. एवरीथिंग विल बी एक्सेस, राइट. सो इंक्रीज प्लाज्मा सोडियम. अगर इंक्रीज प्लाज्मा सोडियम हो रहा है तो देयर विल बी डिक्रीज्ड पोटेशियम, सो देयर विल बी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. एक्सेसिवली बहुत ज्यादा लेवल में ब्लड प्रेशर होगा, राइट. एक्सेसिव रिमूवल ऑफ पोटेशियम होगा. जो भी कंडीशन है, नॉट प्राइमरीली कोई भी कंडीशंस, प्राइमरीली ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है. अगर बहुत ज्यादा ही सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा, है ना. एक्सेसिव रिमूवल ऑफ जरूरत से ज्यादा, वो भी लिख लेंगे बेटा हम, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ पोटेशियम. ठीक है. इसके साथ लेटर स्टेजेस में देयर विल बी किडनी डिसफंक्शन, because constantly it is acting on the cells of the kidneys, right. So later stages में it might lead to kidney dysfunction. So ऐसे characteristically कोई symptom नहीं है. जैसे हमने इसमें पढ़ा था, we spoke in cretinism में हमने बोला था कि it is a 3P disease, है ना. 3P disease में क्या क्या आते हैं? pigeon chest, protruding tongue, है ना. 3P disease हमने बात किया था, to remember, pigeon chest, protruding tongue और pot belly. ठीक है. हमने ये 3P diseases पर बात किए थे. But here associated with this there is no characteristic symptom.
ओके, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है। और एडिसन्स डिजीज, आई टोल्ड यू, एडिसन्स डिजीज हम कॉमनली पढ़ेंगे। हियर वी विल बी स्पीकिंग अप इन deficiency of mineralocorticoids and deficiency of glucocorticoids। So अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं, it is deficiency of both gluco and mineralocorticoids। ठीक है बेटा। So that ends with our mineralocorticoid। We have to talk about the second hormone, that is glucocorticoids। ठीक है। So let's start up with the next hormone, that is glucocorticoids। So glucocorticoids मैंने अलग से, मैं पूरा का पूरा बोर्ड इसलिए साफ कर रहा हूँ because it's a very important hormone and it is a little complicated to understand। देखो एक बार समझ गया तो it is nothing complicated as such। So the second hormone which we have to talk about, we have to complete adrenal gland today। पैंक्रियाज हम बाद में भी कर सकते हैं, पैंक्रियाज आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, बट ठीक है अब टॉपिक है तो वी हैव टू डू इट। द सेकंड हार्मोन इज glucocorticoids। द सेकंड हार्मोन इज glucocorticoids। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अल्टीमेट गोल क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज कर दो, कैसे भी करके। इट डज नॉट रियली केयर, है ना। ये हार्मोन का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सीरम और ब्लड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इट डज नॉट रियली केयर हाउ इज इट डूइंग इट। तो हम ग्लूकोज को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आल्सो इन जनरल टर्म इट इज रेफर्ड टू एज कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन। ये इसके टाइप्स है बेटा, ठीक है। केमिकल नेचर, व्हाट इज द केमिकल नेचर अगेन? दिस इज अ स्टेरॉइड डेरिवेटिव। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? केमिकल नेचर के बाद हम लिखते हैं it is regulated by positive feedback is given by ACTH and there is no negative feedback। There is no negative feedback, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगेन आई टोल्ड यू विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेस, अब कॉर्टिसोल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज स्ट्रेस हार्मोन। अगर एक इंसान स्ट्रेस में चले जाता है तो हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा खाना खाता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा भूख लगती है। ये फंक्शन यही है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा भूख इसलिए लगती है बिकॉज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अल्टीमेट रोल क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दो, ठीक है। इट इज डूइंग नथिंग लाइक ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज कराना। उसका अल्टीमेट गोल क्या है? कि ब्लड में ग्लूकोज दिखना चाहिए। Whereas इंसुलिन का गोल क्या है? कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, दीज ग्लूकोज शुड एंटर इनटू दी मसल्स, करेक्ट। सो ये इंसुलिन का काम है, बट इसका काम ये नहीं है, डज नॉट रियली केयर कि वेयर ग्लूकोज इज गोइंग, राइट। वो ग्लूकोज अगर जा भी रहा है उसकी अपटेक को वो कम कर देगा। अल्टीमेटली उसका काम क्या है? ब्लड की ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करना। Do not get confused with respect to insulin. Do not get confused with respect to thyroid, and do not get मतलब technically these two hormones में confusion नहीं create करना है। इसका काम क्या है? ग्लूकोज का ब्लड लेवल इंक्रीज कराना।
तो आप कैसे कैसे इसको इंक्रीज करा सकते हो? पहला फंक्शन क्या है कि आप ग्लाइकोजन को तोड़ सकते हो. यू कैन ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन कॉजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ठीक है. सो आई कैन ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन. So it does that. Second thing what you can do is you can break down fats, you can convert fatty acids into glucose. So what is that process called as gluconeogenesis? Conversion of non-carbohydrate compounds into carbohydrate compounds. मतलब formation of glucose from non-carbohydrate compounds like fatty acids and amino acids. ठीक है. तो वो क्या करेगा? लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, ब्लड में फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगा सो दैट इट कैन कॉज इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज. इट कैन कन्वर्ट फैटी एसिड्स इनटू ग्लूकोज. ठीक है. अब अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बन सकता है बेटा. ठीक है. सो व्हाट कैन इट डू? इट कैन स्टॉप द अपटेक ऑफ द सेल. इट कैन स्टॉप द अपटेक ऑफ द सेल टू टेक अमाइनो एसिड. वो प्रोसेस को स्टॉप करेगा और ब्लड में ही अमाइनो एसिड्स, ब्लड में ही फ्लोटिंग अमाइनो एसिड्स रहेंगे सो दैट these amino acids can also be converted into glucose. So ultimately what is it doing to the lipids? Lipolysis. Ultimately what is it doing to protein? Proteolysis. So ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन का भी लाइसिस करा रहा है, लिपिड्स का भी लाइसिस. स्टोर्ड, सब कुछ स्टोर्ड चीजों का. प्रोटीन तो स्टोर्ड नहीं रहता बट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द मसल्स. प्रोटीन्स आर प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ योर बायोमोलिक्यूल्स, राइट. सो प्रोटीन्स का भी वो ब्रेक डाउन करेगा. सो तीनों का लाइसिस करके अल्टीमेटली वो ग्लूकोज बनाएगा. ठीक है. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन. वी टॉक अबाउट दैट एंड व्हेन वी लिस्ट आउट द फंक्शन वी विल डू इट वंस अगेन. तो रेगुलेटेड बाय लिख लिया हमने. रेगुलेटेड के बाद क्या लिखते हैं हम? टारगेट. सो टारगेट वुड बी, पहला टारगेट क्या होगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को इंक्रीज कराना है. तो पहला टारगेट वुड बी हेपेटोसाइट्स. दीज आर योर मेजर टारगेट. हेपेटोसाइट्स आर योर मेजर टारगेट. ठीक है. और भी कुछ सेल्स है एंड दैट इज एडिपोसाइट्स. मैंने बताया आपको कि फैट्स को भी ब्रेक डाउन करेगा. एडिपोसाइट्स फैट्स को भी ब्रेक डाउन करेगा and we get converted into glucose. So these are the targets. Target के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? फंक्शन. So let's understand फंक्शन क्या है. पहला फंक्शन लिख लेते हैं हम. फर्स्ट फंक्शन इज increases blood glucose levels. Increases blood glucose levels. So how is it doing? What all things is it doing to meet this purpose? Let's try to list it down. तो second चीज वो क्या करेगा? It will cause increase glycogenolysis. करेगा, बराबर है. It will increase glycogenolysis. ठीक है. It will decrease glycogenesis. will decrease glycogenesis. ठीक है. तीसरा चीज वो क्या करेगा? It will causes gluconeogenesis. ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू ग्लूकोज बनाना, राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस? formation of glucose from non-carbohydrate compound. Formation of glucose from non-carbohydrate molecules. ठीक है. So non-carbohydrate molecules क्या होंगे बेटा आपके? अमाइनो एसिड्स होंगे, फैटी एसिड्स होंगे. ठीक है. So let's try to understand what is it doing to fatty acids. So what will it do to fatty acids? It will cause increased lipolysis. क्यों करेगा increase? Because it acts on the adipocytes. क्यों करेगा increase lipolysis? To increase blood levels of fatty acids. ठीक है. फैटी एसिड से
से फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा, ग्लूकोज। सो घूम फिर कर बात वही कर रहा है लिपिड्स को, प्रीडोमिनेटली लिपिड्स को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन्स का क्या कर रहा है बेटा वो, अगेन इट विल इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। क्यों कर रहा है ये, टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, पर अगर अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा रहे तो सेल्स यूटिलाइज करेंगे, सेल्स यूटिलाइज, अगर अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा रहे तो सेल्स विल यूटिलाइज इट फॉर ट्रांसलेशन एंड अल्टीमेटली प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। सो अब ये सेल्स का भी अपटेक है ना विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड्स रोकेगा। सो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट decreases the uptake of amino acids by cells. Decreases the uptake of amino acids by cells. So ये आपका इतना मेजर फंक्शन है with respect to your nutrition. ठीक है, आपके ग्लूकोज लेवल्स को मीटअप एक्सेसिवली इंक्रीज कराने का फंक्शन ये सब करवा रहा है। ठीक है, सिक्स्थ फंक्शन। नाउ द सेवेंथ फंक्शन, अब हम बात करेंगे सर्टेन थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ इट। ठीक है, ये इतना हमने लिख लिया, थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है। सो इट इज वन ऑफ दी, अब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करा रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, इट इज एंटी इंसुलिन इफेक्ट, बिकॉज इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करा रहा है, ये इंसुलिन को इंक्रीज करा रहा है। सो इट इज लीडिंग टू एंटी इंसुलिन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इट डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन। इट डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन, जनरली अगर सूजन हो, जनरली कोई भी टाइप की इन्फ्लेमेशन हो या एलर्जी हो, सो जनरली डॉक्टर्स विल प्रिस्क्राइब कॉर्टिसोन, है ना, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन, ये क्रीम्स लगाने को देते हैं वो। तो स्पेसिफिकली ये क्या करता है, एलर्जिक सिम्टम्स जो है उसको कम करता है, राइट। सो डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, हाउ डज इट डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मास्ट सेल। अगर मास्ट सेल नहीं रहे तो क्या होगा, देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ डिक्रीज लेवल्स ऑफ हिस्टामिन। अगर हिस्टामिन कम हुआ तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन कम होगा। सो इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए हम कॉर्टिसोन्स देते हैं। ठीक है, सो नाइन्थ इज अगर इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है तो एलर्जी भी कम होगा, एलर्जी के साइंस भी कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज थेरेप्यूटिकली इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिक्रीज द इम्यूनिटी। ठीक है, अब इम्यूनिटी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन प्रिवेंट करना है, ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी में हमको इम्यूनोसप्रेसेंस पे रखना है, सो वी विल गिव हिम स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स या फिर कॉर्टिसोल्स देंगे सो दैट उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम रहे। सो हाउ इज इट डूइंग इट, हाउ आर these functions established in your body? तो वो क्या करता है, it decreases the phagocytic activity, of macrophage, thereby decreasing the immunity. Hence used as a treatment for autoimmune diseases. ठीक है बेटा, ऑल राइट। सो ये एक फंक्शन हो गया। Also one more function with respect to this is it also increases erythropoiesis. ये एक कितना फंक्शन हो गया, एलर्जी हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इम्यूनिटी। सो एंटी इम्यूनिटी इफेक्ट है इसका। ठीक है, एंटी इम्यूनिटी को कम करता है बेटा। ठीक है, 11th और एक फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोएसिस। एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज रहा तो आपका ब्लड सेल का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोएसिस। बिकॉज इट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोएसिस, इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट
used as a treatment for Crohn's disease. कंफ्यूज नहीं हो रहा है बेटा, Crohn's disease अलग, CONNS. Crohn's disease is purely associated with mineralocorticoids. This is Crohn's disease. Crohn's disease में होता क्या बताएगा, एक्सेसिव एसिडिटी होगा, एक्सेसिव अल्सरेशन ऑफ द स्टमक होगा, ठीक है, एक्सेसिव लीजन्स फॉर्म होंगे, अल्सर्स फॉर्म होंगे, और ये अल्सर्स की वजह से स्टूल्स में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा, ठीक है. सो ब्लड लॉस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंक्रीज, मतलब टेक्निकली स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स या स्टेरॉइड्स और गिवन. बट इसका डिसएडवांटेज क्या बताएगा, अननेसेसरी इंसान, अब व्हेन दैट हार्मोन इज फंक्शनिंग, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, पर हम इतना ग्लूकोज यूज ही नहीं कर पा रहे. सो अल्टीमेटली अगेन दिस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा. जैसे हार्मोन का लेवल्स कम हो जाएगा, वापस ये ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट, पर्टिकुलरली डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है. सो एक डिसएडवांटेज ये है कि वो फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम डायबिटीज के कंडीशन के जैसे मैच कर सकते हैं, ठीक है. सो इट इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर Crohn's disease. Crohn's disease में हो क्या रहा है, इट कॉजेज इंक्रीज अल्सरेशन, और अल्सरेशन की वजह से देयर कैन बी इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, ठीक है. सो दिस वाज द मेजर फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एक और फंक्शन इट कैन बी यूज्ड, अभी एंटी इम्यूनिटी इफेक्ट है इसकी, है ना, एंटी इम्यूनिटी इफेक्ट है, तो हम इसको ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी में दे सकते हैं. सो द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज इट कैन बी यूज्ड इन ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी. It can be used in transplant biology. Why it can be used in transplant biology? Because it decreases the production of antibodies. It decreases the production of antibodies, thereby decreases the chances of graft rejection. Decreases the chances of graft rejection. ठीक है बेटा. सो 12 फंक्शंस थे, 12 फंक्शंस आप लिस्ट आउट कर सकते हो. इसके साथ कुछ एडिशनल फंक्शंस दिए होंगे, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सब आप खुद से कर सकते हो. दीज आर द मेजर फंक्शंस व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. तो मैंने इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को अलग से लिखा है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारा लिखना है तुमको, ठीक है. सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराना है तो ग्लूकोजेनोलाइसिस कराएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा और ग्लाइकोजेनेसिस को कम कराएगा. ग्लाइकोजेनोलाइसिस से क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराएगा बाय कन्वर्टिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड. सो वो कैसे है, बाय इंक्रीजिंग लिपोलाइसिस इट विल इंक्रीज फैटी एसिड लेवल्स. Increasing proteolysis, it will increase amino acids levels, and also it is causing decrease in the cellular uptake of amino acids. ठीक है. एंटी इंसुलिन इफेक्ट है. दिस इज ऑल्सो डायबिटोजेनिक हार्मोन, ठीक है. डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, दैट इज डिक्रीज नंबर ऑफ मसल. बाकी के फंक्शंस आप लिख सकते हो, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, डिक्रीज एलर्जी, ठीक है, डिक्रीज फेगोसाइटिक एक्टिविटी एंड डिक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है. और एक फंक्शन इंक्रीज का बीच में लिखते हैं हम, दैट इज इंक्रीज एरिथ्रोपोएसिस. ठीक है बेटा. तो इतना हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है. एक चीज मैंने आपको बताया था, दैट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज द स्ट्रेस हार्मोन. ये आपको याद रखना है. स्ट्रेस में रिलीज होने वाले हार्मोन ये है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन नहीं, ठीक है. दैट इज ऑल्सो रिलीज अंडर स्ट्रेस, बट देन इट इज ऑल्सो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन तो फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट रेस्पॉन्स वाले हार्मोन है, 3F हार्मोन है. Whereas स्ट्रेस हार्मोन अगर एग्जाम में पूछा तो यू हैव टू राइट कॉर्टिसोल, ठीक है, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा, ठीक है. सो पैथोलॉजीज लिख लेते हैं हम. अभी इतना इरेज करना पड़ेगा अभी पूरा का पूरा. तो पैथोलॉजीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड.
पैथोलॉजीज इज हाइपरसिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन, ठीक है। Hypersecretion causes a disease. Hypersecretion causes a disease which is called as Cushing's syndrome. And hyposecretion causes a disease called as Addison's disease. ठीक है, now we try to understand what is Cushing syndrome and what is Addison's disease. अब Cushing syndrome में हो क्या होगा बेसिकली, है ना। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल्स है, अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक बफेलो हम्प लाइक कंडीशन, है ना। पीठ पे एक छोटा सा हम्प, बफेलो हम्प के जैसे, गांठ के जैसे बन जाता है पीठ पे, एंड दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। राउंड फेस होगा, एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फैट होगा, है ना, बफेलो हम्प लाइक कंडीशन होगा। सो दीज बफेलो हम्प लाइक कंडीशन अगर दिख गया तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ कशिंग सिंड्रोम है। जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि बफेलो हम्प कंडीशन कौन से डिजीज में दिखता है, दैट इज कशिंग सिंड्रोम, ठीक है बेटा। सो टू टॉक अबाउट कशिंग सिंड्रोम, व्हाट कैन बी दी मेजर सिम्टम्स, लेट्स ट्राई टू लिस्ट दैट डाउन। सो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, बफेलो हम्प, बफेलो हम्प कंडीशन क्यों होता है बेटा, बिकॉज दिस इज ड्यू टू accumulation of fats and fluids, ठीक है। सो ये बफेलो हम्प लाइक कंडीशन, अपार्ट फ्रॉम दिस फैट्स एंड फ्लूइड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा है तो बाकी सारे नॉर्मेलिटीज आ जाते हैं, तो ये सब आप खुद से कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो वही है कंडीशंस, यहाँ पे फंक्शंस देख लो, अगर बहुत ज्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है, इम्यूनिटी कम होगी, आपकी हीलिंग, देखो डायबिटीज में ये कंडीशन होता है, राइट। डायबिटीज में कंडीशन क्या है कि आपकी हीलिंग की प्रोसेसेस कम हो जाती है, राइट। सो अल्टीमेटली इसमें भी फंक्शंस क्या होंगे, हीलिंग कम होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा, द पर्सन विल ऑलवेज बी लेथार्जिक, फटीग होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दोज आर द सिम्टम्स विद रिस्पेक्ट टू कशिंग्स सिंड्रोम, ठीक है। एडिसन्स डिजीज में क्या हो रहा है, आई टोल्ड यू एडिसन्स डिजीज इज द कॉमन डिजीज फॉर बोथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में भी let's try to list out the functions for mineralocorticoids and then we'll try to list out the function for glucocorticoids. Characteristic symptom of Addison's disease is bronzing of the skin, ठीक है। अब ये ब्रॉन्जिंग ऑफ द स्किन इज ड्यू टू एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ प्लाज्मा पोटेशियम। देखो बेटा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हाइपोसिक्रेशन दैट इज एल्डोस्टेरॉन का हाइपोसिक्रेशन हुआ तो सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, है ना। सोडियम यूरिन से बाहर निकल जाएगा तो ऑब्सॉर्ब कौन होगा, पोटेशियम। तो इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम की वजह से ब्रॉन्जिंग ऑफ द स्किन होगा। सो ब्रॉन्जिंग ऑफ द स्किन इज ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा पोटेशियम, ठीक है। और क्या क्या सिम्टम्स होंगे, नेट्रीयूरेसिस होगा, नेट्रीयूरेसिस रेफर्स टू यूरिन से सोडियम का पास होगा, सो नेट्रीयूरेसिस होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स इज जनरली ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्यूमर, है ना। टीबी के वजह से कोई ट्यूमर, टीबी के वजह से कोई डैमेज हो सकता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इंक्रीज नेट्रीयूरेसिस, बाकी सब एक्सेसिव फंक्शन आप खुद से लिख सकते हो। अगर सोडियम ही नहीं रहा तो वाटर भी नहीं होगा, तो अगर सोडियम नहीं रहा वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, इट कैन कॉज इंक्रीज डिहाइड्रेशन या फिर डिक्रीज्ड वाटर लॉस, इंक्रीज्ड वाटर लॉस लीडिंग टू इंक्रीज डिहाइड्रेशन। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है विद रिस्पेक्ट टू हाइपोसेक्रेशन एडिसन्स डिजीज, ठीक है। तो अगेन क्विकली रिवाइजिंग, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का हमने
हाइपर सिक्रीशन में क्या पढ़ा था? वी स्पोक अबाउट कॉन्स डिजीज या एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपोसिक्रेशन में क्या पढ़ा? एडिसन्स डिजीज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हाइपोसिक्रेशन में क्या पढ़ा? कशिंग्स सिंड्रोम, जीसी, ग्लूको का कशिंग सिंड्रोम। हाइपोसिक्रेशन में क्या पढ़ा? अगेन एडिसन्स डिजीज। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखो हाइपो है, ये उल्टा है, बस ऐड करेगा तो हाइपर होगा, है ना, ऐड करेगा तो हाइपर होगा, बट यहाँ पे इट इज अ उल्टा केस। सो ऐड कर हाइपो हो रहा है, ऐसे याद रखना है बकवास चीजें, ठीक है? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मूविंग अहेड विद गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में भी गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स एसोसिएटेड विद गोनाड्स। गोनाड्स को स्टिमुलेशन करने वाले या फिर गोनाड्स का डेवलपमेंट करवाने वाले जो हार्मोन्स है, दे आर रेफर्ड टू एज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स एंड प्रीडोमिनेंटली दीज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स आर दी टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। Now, not to be confused that these gonadocorticoids are corticoids produced by adrenal cortex, इसलिए इसको corticoids बोला। Do not get confused with respect to testosterone and estrogen produced by the gonads। ये अलग है और ये अलग है, उनका अलग फंक्शन, उनका टारगेट अलग है, इनका टारगेट अलग है बेटा, ठीक है? So let's try to list down or let's try to understand the third layer, and the third layer का hormone is gonadocorticoids। Now if you talk about gonadocorticoids specifically, these gonadocorticoids are testosterone, correct? इसको हम बोल देंगे एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है? अब ये एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन एंड्रोशियन से वर्ड आया है, एंड्रोजन इज मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है? सो एंड्रोजन में कौन से हार्मोन्स आएंगे? टेस्टोस्टेरोन, एपीएंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रोक्सी एपीएंड्रोस्टेरोन, ये सारे इसके फॉर्म्स है। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन इज अ जनरल नेम, बट केमिकल फॉर्म में दीज आर द केमिकल फॉर्म्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ईस्ट्रोजन भी है, ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट्राडियोल। ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट्राडियोल, ठीक है बेटा? तो ये सब जो चीजें हैं, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? थर्ड लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड दैट इज जोना रेटिकुलरिस। अब इसमें भी एंड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट, whereas estrogen is produced in less amount। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एंड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मेल। अब फीमेल में कंडीशन ये होगा कि एंड्रोजन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं होता है कि उल्टा होगा, ठीक है? फीमेल्स में कंडीशन क्या होगा बेटा? दिस इज द कंडीशन फॉर मेल, एंड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड इन मोर अमाउंट, एस्ट्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। इसलिए हम बोलते हैं कि मेल में दोनों हार्मोन्स होते हैं, दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी किसके पास है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। Whereas when you talk about the specific puberty के बाद वाले जो gonads है, they are specific gonads to produce only one type of hormone। अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन ही होगा, अगर फीमेल है तो ईस्ट्रोजन ही होगा, ठीक? तो this is in case of the male, androgen, male hormones will be more, female hormones will be comparatively lesser। But
फीमेल्स में क्या होगा, ये कंडीशन नहीं होगा कि फीमेल हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कम होगा। फीमेल्स में होगा क्या बेटा कि कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन विल बी प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। ये नहीं होता कि एंड्रोजन कम होगा, ईस्ट्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। सो नाउ स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दी केमिकल नेचर क्या है, वही है सेम। Chemical nature is steroid derivative, ठीक है। रेगुलेटेड बाय, इसके लिए कोई भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ठीक है। रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती तो आज बहुत सारे ऐसे सेक्स रिलेटेड डिजीज नहीं होते, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल के पर्सनालिटी रिलेटेड डिजीजेस नहीं होते, ठीक है। सो रेगुलेटेड बाय नहीं है। डायरेक्टली विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टारगेट, ठीक है। टारगेट क्या है, टारगेट इज प्राइमरीली इट इज प्राइमोर्डियल गोनाड्स, which is in IUL. IUL refers to intrauterine life. मतलब टेक्निकली इफ यू आई हैव टू स्पोकन अबाउट अ स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू एपिजेनेटिक्स, मैंने आपको शायद बताया था, है ना, कि प्रायर टू 3 months all of us were females. Prior to 3 months all of us were females. Primordial gonad तब तक सिर्फ primordial gonad था. You really can't look at the gonad जिनसे कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। After 3 months, the levels of androgen, मतलब technically the levels of testosterone increases in the fetal blood, ठीक है। तो ये increased level of testosterone stimulates the brain of the human or brain of the growing fetus, ठीक है। And it causes, technically वही है कि it causes the behavioral changes, मतलब it causes the even more production of testosterone, and technically the hormone stimulates the primordial gonad to now differentiate into male gonad, and that is testis. And that is when the testis starts to develop, and because it has to descend out of the abdominal cavity, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि इट एक्ट्स ऑन द प्राइमोर्डियल गोनाड फॉर स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन। अगर एंड्रोजन रहा, अगर वो मेल रहा तो उसमें एंड्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और एंड्रोजन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो इट विल स्टिमुलेट द प्राइमोर्डियल गोनाड टू डिफरेंशिएट इनटू अ टेस्टिस, ठीक है। अगर एंड्रोजन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, एंड्रोजन, आई टोल्ड यू हियर प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एंड्रोजन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड कि वो बच्चे के प्राइमोर्डियल गोनाड को स्टिमुलेट करे, एंड इट माइट नॉट डेवलप इनटू अ टेस्टिस। सो अगर टेस्टिस में डेवलपमेंट नहीं होगा तो इट विल रिमेन एज ओवरीज। सो प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन मेक्स primordial gonad convert into testis, and absence of androgen causes the development into a female gonad, and that is ovaries, ठीक है। सो ये पहला टारगेट है प्राइमोर्डियल गोनाड्स। दूसरा है गोनाड्स, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स करवाता है, ठीक है, बट गोनाड्स ओनली टिल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बताया मैंने आपको कि ये हार्मोन अलग है, ये हार्मोन का टारगेट अलग है, हार्मोन का फंक्शन अलग है बेटा, ठीक है। सो दो पर्टिकुलर टारगेट है आपके, प्राइमोर्डियल गोनाड्स फॉर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन इनटू अ मेल, ठीक है, एंड गोनाड्स टिल टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टिल टाइम ऑफ प्यूबर्टी अ मेल रिमेन्स लाइक अ मेल। स्पेसिफिकली व्हेन यू से मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। पोस्ट प्यूबर्टी दी कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस, females they develop secondary sexual characteristics, male develop secondary sexual characteristics. So post puberty only you can differentiably say that this is a male and this is a female, right? But prior to puberty there is development of the testes, there is development of the ovaries which are taking place, and that is due to these gonads, ठीक है बेटा। So let's try to list down the functions. ठीक है। So पहला फंक्शन क्या है,
differentiation of primordial gonads. Differentiation of primordial gonads, ठीक है, इनकी IUL. दूसरा, growth and development of primary gonads. Primary gonads are your testes and ovaries till puberty. ठीक है, ये दो प्रीडोमिनेंट फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है, तीसरा फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है, बस ये तीन मेजर फंक्शंस है. एक और फंक्शन वही है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. प्यूबर्टी आएगा तभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे. ठीक है, ये इट इज बिकॉज, अंडरस्टैंड दिस, इट इज बिकॉज ऑफ दीज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स. जो प्यूबर्टी है, कुछ बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, कुछ बच्चों में प्यूबर्टी लेट आती है. इट इज ड्यू टू दीज हार्मोन्स, डेफिशिएंसी ऑफ दीज हार्मोन्स, जिसकी वजह से प्यूबर्टी जल्दी अगर आ गई तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल प्रिकॉसिटी. अगर लेट आ गई तो दैट इज कंपैरेटिवली डिलेड प्यूबर्टी. सो डिलेड प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल प्रिकॉसिटी आर ऑल ड्यू टू गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है बेटा, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस. इसके पैथोलॉजीज लिख लेते हैं. पैथोलॉजीज में यू हैव बोथ हाइपर एंड हाइपो. ठीक है, अब हाइपर सिक्रीशन कैन बी इन बोथ मेल और इट कैन बी इन बोथ फीमेल. ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आई टोल्ड यू एंड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, एंड्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. सो हाइपर सिक्रीशन अगर मेल में अगर हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, हाइपर सिक्रीशन, लेट्स टॉक अबाउट द पैथोलॉजीज. लेट्स नॉट अंडरस्टैंड कि अगर मेल में मैं बात कर रहा हूं तो मेल में आई विल से लेस अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, लेस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड मोर अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन. ठीक है, मेल में अगर हम कंसिडरेशन यही करेंगे. सो हाइपर सिक्रीशन पैथोलॉजीज की बात हो रही है. ठीक है, सो इन मेल इट विल बी मोर ईस्ट्रोजन एंड लेस testosterone. In female it will be more testosterone and less estrogen. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है. और हाइपोसिक्रीशन में भी दोनों होगा. ठीक है, हाइपोसिक्रीशन में देयर विल बी more testosterone. When you say hyposecretion, बेटा hyposecretion हम यही लिखेंगे बेटा कि स्पेसिफिकली अगर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स नहीं प्रोड्यूस हुए तो सेक्सुअल प्यूबर्टी लेट आएगा. प्यूबर्टी कंपैरेटिवली नॉट मच इंपैक्टफुल कंडीशन होगा, बट प्यूबर्टी लेट आएगी. एंड अगर प्यूबर्टी लेट आएगी तो ऑटोमेटिकली लो स्पर्म काउंट होगा, ये सभी इनफर्टिलिटी होगा, इम्पेयर्ड ग्रोथ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन हाइपर एंड हाइपो. इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है. हाइपो हमको इतना ही पढ़ना है कि क्या होगा. इट विल लीड टू low sexual maturity. It will lead to impaired growth of gonads.
and slow development of puberty. Also it might lead to infertility. ठीक है, अब चलो हाइपर के बारे में बात करते हैं. क्या होगा अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन होगा मेल में? अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, तो मेल में हाइपर सिक्रेशन, दिस इज बिफोर प्यूबर्टी. ओके, दिस इज बिफोर प्यूबर्टी. सो अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन कम है, तो दैट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया. गायनेकोमास्टिया. गायनेको का मतलब क्या है? गायनेको रेफर्स टू फीमेल, mastia refers to breast. Female mastia, mastoid refers to breast. So here conditions would be, gynecomastia का conditions क्या होगा? Development of breast in males. Development of breast in males. Whereas फीमेल में अगर हुआ तो फीमेल में द कंडीशन, फीमेल में क्या ज्यादा है बेटा? टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, ईस्ट्रोजन कम है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है. सो द कंडीशन विल लीड टू, द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज एड्रीनल विरिलिज्म. एड्रीनल विरिलिज्म. और एड्रीनल विरिलिज्म के भी फंक्शंस, फर्दर सिम्टम्स क्या होंगे? हर्स्यूटिज्म. Hirsutism refers to growth of facial hair. Coarse voice, एकदम आदमी जैसे आवाज होगी औरतों की. Coarse voice, that is comparatively low pitch voice. ठीक है. Hirsutism में broad chest. ठीक है, ये पेक्टोरल गर्डल ब्रॉड होगी कंपैरेटिवली. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल विरिलिज्म. अब मैंने आपको यही बताया, हाइपर सिक्रेशन में क्या ज्यादा होगा? उल्टा हार्मोन हम लोग कंसीडर करेंगे. मेल में हम उल्टा हाइपर सिक्रेशन इंक्रीज बताएंगे, फीमेल में भी हम उल्टा हाइपर सिक्रेशन बताएंगे. मेल में उल्टा हाइपर सिक्रेशन इज इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन, फीमेल में इट इज इंक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. व्हेयरएज देयर लो सिक्रेशन सब में कंपैरेटिवली इनफर्टिलिटी और ये सब कंडीशंस आएंगे. ठीक है. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू adrenal cortex. Quickly we'll finish up adrenal medulla and that is all for today. ठीक है, इतना हम लोग अभी कर लेते हैं. The next gland which we will be talking about is adrenal medulla. So adrenal medulla में the hormones are associated. Hormones, let's try to understand the origin. The origin क्या है इसका बेटा? ectodermal in origin. ठीक है. Origin is ectodermal in origin. उसके बाद structure and histology. स्ट्रक्चर में these cells, अभी क्या मैंने आपको तभी इससे लेक्चर के स्टार्ट में बताया, तो what are these? The cells of the adrenal medulla are called as chromaffin cells.
again very similar to pituitary cells na, color chromophils, chromaffin cells, color affinity wale chromaffin cells, or also called as pheochromocytes. Pheochromocytes मतलब they are colored by the they are stained by the colored dyes. ठीक है. So these pheochromocytes मैंने आपको बताया pheochromocytes या chromaffin cells, these are specifically ganglionic cells of CNS which lost the contact with CNS and turned into glandular function. ठीक है. और ये जो एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन प्रोड्यूस यहां पे ही होगा बेटा, बट these hormones are stored in tiny vesicles. The hormones are stored in tiny vesicles. And whenever on stimulus by sympathetic nervous system, they are released hormones are released by exocytosis. ठीक है. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर के बाद हम क्या लिखते हैं, भी यहाँ पे भी हम we will not be able to write target and location because target, I hope we have done a lot of things with respect to target, location, because जब हमने sympathetic nervous system के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा कि what is sympathetic nervous system, what is adrenaline doing to top to bottom, हमने ये बात किया था कि वो क्या करेगा, it will cause increased blood glucose, it will cause increased blood circulation, increased blood pressure, है ना, dilation of the pupil, increased heart rate, increased breathing rate. So जो जहां पे वो ATP को बचा सकता है वो वहां पे से ATP बचाएगा, so that your surface के muscles को, surface के tissues को ज्यादा एनर्जी मिले, so that you can get rid of that particular condition, है ना. Adrenaline, noradrenaline is referred to as 3F hormones बेटा. ठीक है. चलो आगे बढ़े. सो स्ट्रक्चर हो गया, फिर अभी हम हॉर्मोन्स के बारे में बात करते हैं. सो these hormones are collectively referred to as catecholamines. So when I say catecholamines, they have a specific catechol group. ठीक है. अब कैटेकोलामाइंस में एड्रेनालिन आता है, नॉरएड्रेनालिन आता है और डोपामिन आता है. सो ये तीनों हार्मोन स्पेसिफिकली आपके दे आर इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस. सो नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर फॉर कैटेकोलामाइंस. ठीक है. सो कैटेकोलामाइंस में आपके पास आता है एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. This is also referred to as epinephrine or norepinephrine. ठीक है. एपी ऊपर, नेफ्रिन मतलब एसोसिएटेड विद नेफ्रॉन एसोसिएटेड विद किडनी, तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट वाले हार्मोन ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए एपिनेफ्रिन. अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स. ठीक है. रूट क्या है इनका, केमिकल नेचर क्या होगा ये हार्मोन्स का, केमिकल नेचर वुड बी दे आर अमाइन डेरिवेटिव्स ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज अमाइन डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड एज टायरोसिन. हमने ये बात किया था कि इट इज हैविंग टायरोसिन मॉलिक्यूल. ठीक है, एज द बेस. तो आपको कैटेकोलामाइंस क्या है वो सब आपको मैंने नोट्स में दे दिया. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि
You don't have to read or by heart the structure for catecholamines. अगर होता तो मैं आपको बता देता. ठीक है. So let's try to list down the functions. अब एड्रीनालिन नॉरएड्रेनालिन करते क्या है हमको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है. ठीक है. So top to bottom if you have to start up with what does adrenaline does or what does sympathetic nervous system does. It dilates the pupil. करेक्ट. प्यूपिल का डायलेशन कराएगा, सलाइवा का सिक्रीशन स्टॉप करा देगा. वेरेवर यू कैन स्टॉप द सिक्रीशन, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कराएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा, है ना, डाइजेशन को इनहिबिट कराएगा. इट विल इनहिबिट ऑल द मेजर सिक्रीशंस ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज डाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. राइट. इट विल लीड टू फॉर द रिलैक्सेशन, है ना, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर और बाकी सब चीजें आपको याद करना है विद रिस्पेक्ट टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं वही फंक्शंस हम यहां पे भी लिखेंगे. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एड्रेनालिन और एड्रेनालिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दोनों में डिफरेंसेस है और बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंसेस है. वी ट्राई टू लिस्ट डाउन दैट. ठीक है. फंक्शंस एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर कैटेकोलामाइन्स. ठीक है. बट एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटाइलेशन. ये रिएक्शन मैंने दिया है नोटबुक में, वो कॉपी कर लेना बेटा प्लीज. Not very important. Produced by acetylation of noradrenaline. Acetylation of noradrenaline. ठीक है. Adrenaline is produced in greater amount, so 80% adrenaline produce होता है, 20% noradrenaline produce होता है. More potent and less potent. ज्यादा अमाउंट में कौन प्रोड्यूस हो रहा है? अब ज्यादा अमाउंट में एड्रेनालिन प्रोड्यूस हो रहा है, नॉरएड्रेनालिन कम अमाउंट में. तो दिस इज मोर पोटेंट, दिस इज लेस पोटेंट, इसलिए कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू लिस्ट डाउन इनकी इफेक्ट क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लोकेशंस. ठीक है. Adrenaline has more effect, it has greater effect on heart. ठीक है. greater effect on heart leading to tachycardia. हम बोलते हैं ना कि tachycardia क्या है बेटा? increase heart rate. ठीक है. तो एड्रेनालिन का रोल विद रिस्पेक्ट टू tachycardia is comparatively more, right? So comparatively noradrenaline has lesser effect. इसकी effect on the heart is comparatively lesser effect on heart. ठीक है. अब एड्रेनालिन has less effect on, एड्रेनालिन ग्रेटर हो गया, एड्रेनालिन has less effect on constriction of blood vessel. मतलब आप समझ रहे हो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराने में इसका जो रोल है दैट इज कंपैरेटिवली लेसर. ठीक है. whereas here noradrenaline will have a greater effect. ठीक है. noradrenaline का यही इफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू डायलेशन ऑफ प्यूपिल. दिस विल कॉज डायलेशन, बोथ ऑफ देम विल कॉज डायलेशन. so dilation of pupil and this will also cause dilation of pupil. But adrenaline is causing dilation of pupil in normal condition, whereas this causes dilation of pupil in emergency condition. ठीक है. So dilation of pupil हो गया. Adrenaline has more effects on metabolic activity. एक ही जगह पे less activity है, वो है blood vessels को. So it has more effect on, मतलब technically glycogen का breakdown ज्यादा करेगा कौन? Adrenaline.
ठीक है, मोर इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, whereas comparatively it has less effect on metabolic activity. मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब यही है, ग्लूकोज का इंक्रीज करवाना, ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज कराना, है ना. बिकॉज आई टोल्ड यू, जहां पे एटीपी नहीं चाहिए वहां पे एटीपी रुक जाएगा, जहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट है वहां पे एटीपी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा बेटा. ठीक है, सो मोर इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड लेस इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है, सो टारगेट, अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट आप लिख सकते हो, खुद से ही लिख सकते हो बेटा. ठीक है, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड हमने खत्म कर लिया है सक्सेसफुली. In the next class we only have pancreas and gonads to be completed. ठीक है, so I guess 2 more lectures and this chapter is done. ठीक है, so for now that's all for today. Take care of yourself and keep yourself updated with your notes. God bless you.